ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کے زیر اہتمام ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم یوتھ پروگرام پیغام پاکستان، محکمہ انسداد انتہا پسندی اور حکومت پنجاب کے باہمی اشتراک سے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ تقریب میں ڈی پی او محمد عابد، محکمہ ماحولیات، سماجی تنظیموں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ مزید تفصیل ملک الیار کی رپورٹ میں دیکھی۔ پاکستان لائن یوتھ کونسل کے زیر انتظام ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں تقریب منعقد کی گئی، جس کا عنوان بدلتے ہوئے موسمی حالات اور اس کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات۔ اس موقع پر مقررین کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے، جیسے بدلتے ہوئے موسمی حالات کے باعث سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان چیلنج میں مدد کرنا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن کے اوپر عدالت تحفظ ماحول اور PLYC کے اشتراک کے ساتھ آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے اویئرنیس کا سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی کی ہے، اور اس میں لوگوں کو یہی آگاہی دی گئی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے، اس کے سدباب کے لیے ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ تحفظ ماحول کے قوانین پر عمل درآمد کر کے اور درخت لگا کر ہم اس کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ فضائی آلودگی ہے، آبی آلودگی ہے، اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہمارے جو ڈونر ہیں ان کا نام ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ۔ PPF کے تعاون سے ہم نے آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے یہاں سیلیبریٹ کیا ہے۔ اس کے لیے میں ضلع انتظامیہ کا اور محکمہ ماحولیات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور شمولیت کی اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس پہ کام کرنا، اور ہمارے ڈونر کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اس ماحول کی آلودگی سے بچایا جائے، کیونکہ ہماری آنے والے دنوں میں جو ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے، زیادہ بیماریاں پانی سے پھیل رہی ہیں۔ ابھی ہم اگلے مالی سال میں ہمارا ڈونر جو ہے ضلع خانیوال میں 30 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا رہا ہے۔ دیہاتوں میں جو سیلاب سے جن دیہات بہہ گئے تھے، ان دیہاتوں میں ہم پانی جو ہے وہ صاف پانی لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے ہمارا یہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور ایک پودا جو ہے وہ ضرور لگائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک الیار، NTN نیوز خانیوال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق کرائم فری پنجاب کے تحت کارروائیاں جاری۔ سرچنگ کے دوران پولیس مقابلے میں ایک منشیات فروش ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ تفصیلات جانتے ہیں بلال وڑائچ کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کرائم فری پنجاب کے تحت کارروائیاں جاری۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ASI عرفان لالی نے نواحی علاقہ کوٹ قاضی میں سرچنگ کے لیے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ ناکے پر 3 موٹر سائیکل سواروں کو سرچنگ کے لیے روکا گیا، جس پر انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے حفاظتی خود اختیاری کے تحت فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سے ایک ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کی شناخت آغا سکنر جویا کے نام سے ہوئی۔ اس کے 2 ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم 30 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا اور اس پر 13(9)C کے مقدمات درج تھے۔ فرار ساتھیوں کے لیے CCD پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ بلال وڑائچ، NTN نیوز، چناب نگر۔ گرمیاں آئیں اور پیلو نہ کھائے جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحرائی اور گرم علاقوں میں پایا جانے والا جھنڈ نما یہ درخت، جیسے مقامی زبان میں پیلو یا جال کہا جاتا ہے، اپنے لذیذ منفرد ذائقے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم ماحولیاتی تبدیلیوں، درختوں کی بے دریغ کٹائی اور عدم توجہی کے باعث یہ قیمتی درخت بتدریج ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہوڑ پکا سے حسنین خان رت کی خصوصی رپورٹ۔ صحرائی اور گرم علاقوں میں پایا جانے والا جھنڈ نما رسیلا پھلدار درخت، جسے مقامی زبان میں پیلو اور جال کہا جاتا ہے، عدم توجہی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث بتدریج یہ درخت ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم کہروڑ پکا کے نواحی علاقے میں دربار حضرت لال بھنور کے قریب تقریباً 50 ایکڑ پر محیط پیلو کے قدیمی درخت آج بھی سرسبز و شاداب حالت میں موجود ہیں، جو اس خطے کی قدرتی اور ثقافتی وراثت کی خوبصورت مثال ہیں۔ گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی دور دراز علاقوں سے لوگ اس نایاب اور لذیذ پھل کو چننے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ فالسے سے مشابہت رکھنے والا یہ نازک پھل سرخ، پیلے اور جامنی رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ ذائقے کے اعتبار سے پیلو انتہائی میٹھا، رسیلا اور خوش ذائقہ پھل شمار کیا جاتا ہے۔ ماہرین طب اس پھل کو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید قرار دیتے ہیں۔ پیلو کا درخت ہے، جال دا بہوں رسیلا تے بہوں میٹھا پودا ہے۔
ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦਿਲ दिमाग हर जिस्म के पूरे हिस्से को फ़ायदा देंगे। वसेब की सकाफत और अदब में भी पीलू को ख़ास मकाम हासिल है। अजीम सूफ़ी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदीमी फल की मोहब्बत में मशहूर काफ़ी पीलू पकियानी आ रल चुना यार तख्लीक की, जो आज भी नामवर गुलकारों की आवाज़ में सुनने वालों के दिलों और कानों में रस घोलती है। कैमरा टीम वारिस खान के साथ हसनैन खारिंद, NTN न्यूज़, कैरोड पका। हवेली लखा में 24वां ऑल पाकिस्तान मियां सरदार अली क्लब्स फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो चुका, जहां मुल्क भर के नामवर 24 डिपार्टमेंट्स और क्लब्स की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। शौकीन फुटबॉल के लिए सनसनीखेज मुकाबलों का इनेकाद। फाइनल मैच 14 जून को खेला जाएगा। मुंतज़मीन के मुताबिक टूर्नामेंट का मकसद नौजवान टैलेंट को फ़रोग़ देना और नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। हवेली लखा से रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्ज़ा ज़हीर अहमद। जी ज़हीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हवेली लखा अली फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। जिस शहर में खेलों के मैदान आबाद होते हैं, उस शहर के अस्पताल वीरान होते हैं। खेल नाम नहीं, खेलने का हार जीत का, बल्कि जज्बे और जुनून का नाम है। हमारे साथ जोडिक टीम के ऑनर ज़िया शफीक वटू साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। जी बिल्कुल, आपने बड़ा खूब कहा कि जिसके ग्राउंड आबाद हों उनके हॉस्पिटल जो है वीरान होते हैं। बस इसी की एक कड़ी है कि नवाब अली खान कलश साहब ने ये आल पाकिस्तान टूर्नामेंट इनकाद पजीर करवाया है। तो इसमें जी हम जोडिक के नाम पे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हमारे हवेली लखा की टीम है। और इसमें जी पाकिस्तान के नामवर क्लब और डिपार्टमेंट भी हिस्सा ले रहे हैं। दूर दराज से खिलाड़ी आए हैं, जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ की बड़ी टीमें और बड़े प्लेयर्स हैं, यहाँ पर आए हैं। ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि वो बुरी हैबिट्स को छोड़कर, बुरी महफिलों को छोड़कर यहाँ आकर भरपूर तरीके से एंजॉय करें। फुटबॉल क्लब में बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा यहाँ पे गेम खेली जा रही है, बहुत अच्छा यहाँ पे मैच हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है हमने। और बहुत कमाल यहाँ पे आतिशबाजी भी हुई और बहुत से अच्छे यहाँ पे और भी इंतजामात थे। पूरे पाकिस्तान से नामवर जो प्लेयर आ रहे हैं वो भी अपना जलवा अफरोज होंगे इधर ग्राउंड में। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि शहर भर से तमाम जो लोग हैं वो तशरीफ़ लाएं और ये जो मज़ा है इसको दुबारा करें टूर्नामेंट का। जी, जैसा कि आपने शौकीन फुटबॉल की बातें सुनी, इनका कहना है कि ये नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा इवेंट है, नौजवान इधर आए और आके खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो। जी। चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल सामा इम्तियाज़ की ज़ेर सदारत साहिवाल में खुली कचहरी का इनेकाद, जहाँ कसीर तादाद में साहिवाल के लोगों ने अपने मसाइल पेश किए। शिकायत के अजाले के लिए मुतल्लिका अफसरान को शिकायत हल करने के लिए हिदायत जारी की। तफसीलात जानते हैं सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल साइमा फ़ारूक की ज़ेर सदारत साहिवाल आर्ट काउंसिल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आज़ाद तुफ़ैल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल समीउल्लाह फ़ारूक और DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू समेत तमाम सरकारी महकमों के अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरियों में शहरियों ने मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक़ अपने मसाइल और शिकायत पेश की, जिन्हें मुतल्लिका अफसरान के सपुर्द करते हुए फौरी कार्रवाई और मुकर्रर मुद्दत में हल करने के लिए हिदायत जारी की गई। इस मौका पर चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल सामा इम्तियाज़ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबा भर में खुली कचहरियों का इनेकाद अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले कम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि मसूल होने वाली दरख्वास्तों पर फौरी पेशरफ्त को यकीनी बनाया जाए। शहरियों का कहना था कि ऐसे खुली कचहरियों का इनेकाद मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाना चाहिए ताकि अवाम को फौरी रिलीफ मिल सके। सद्दाम हुसैन, NTN न्यूज़, साहिवाल। रेनाला खुर्द के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंटर्नशिप पर आने वाली लड़की के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश के मामले पर अहम पेशरफ्त। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर थाना सिटी रेनाला खुर्द में अस्पताल के HR अदनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरियों ने मुतालबा किया वाक़े की शफाफ तहकीकात करते हुए मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। इस हवाले से देखते हैं मुश्ताक अहमद भट्टी की रिपोर्ट।
जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पेश आने वाले मुबैना हरासनी और ज्यादती की कोशिश के वाक़े पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इंटर्नशिप पर आने वाली लड़की की दरख्वास्त पर थाना सिटी रीनाला खुर्द में अस्पताल के HR अदरान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम ऐद किया है कि मुलज़म ने दौरान इंटर्नशिप नामनासिब रवैया इख्तियार करते हुए मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश की। वाक़े की खबर सामने आने के बाद शहरियों और समाजी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जबकि शहरियों का कहना है कि सरकारी इदारों में ख़वातीन और तालिबात को महफूज माहौल फराहम करना इंतज़ामिया की अहम जिम्मेदारी है, जबकि ऐसे वाक़यात में फौरी और गैर जानिबदाराना कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरी जानब पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है और हक़ाइक़ की रोशनी में मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैंप के साथ मुश्ताक भट्टी, NTN न्यूज़, रीनाला। रहीम यार खान के सीनियर सहाफ़ी अरसलान शौकत पर इंतज़ामिया की जानिब से मनगढ़ंत FIR दर्ज की गई, जिसकी पुरजोर मज़म्मत करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा मलिक अल-अय्यार से। जी मलिक अल-अय्यार। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों में जो है रहीम यार खान के एक सीनियर सहाफ़ी अरसलान शौकत पर जो इंतज़ामिया की जानिब से जो है मनगढ़ंत FIR दर्ज की गई। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में भी एक एहतजाज जो किया गया है। इस यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब अदनान सईद साहब, जी सर बताइएगा, प्रेस क्लब में आप एक रहीम यार खान के सहाफ़ी जो उस पर FIR की गई, इस हवाले से आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सहाफ़त को आज़ादाना तरीके से करने पर रोकने पर जो है वो एक सहाफ़ी जो रहीम यार खां के हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये हम भी ये मुतालबा करते हैं कि इसकी मेरिट पर शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराई जाए। DPO रहीम यार खां से यही मुतालबा है कि भी अगर ये FIR जो है गलत दर्ज हुई है तो इस FIR को खारिज किया जाए, ताकि सहाफ़ियों के हकूक़ जो है वो सलफ ना किए जा सके। सहाफ़त को आज़ाद होना चाहिए और जो है वो सहाफ़त के ज़रिए ही हमेशा मज़लूम जो है ना वो आवाज़ जो बुलंद की जाती है। हम ये चाहते हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात दर्ज किए जाएँ, ना किए जाएँ, ताकि जो है वो सहाफ़त को आज़ाद तरीके से ही करने दिया जाए। बिल्कुल, आपने यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी साहब की बात सुनी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, इनसे बात बताइएगा, रहीम यार खान ने एक सीनियर सहाफ़ी पर इंतज़ामिया की जानिब से FIR दर्ज की गई, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। NTN का खानेवाल में भी सीनियर सहाफ़ी जो है वो रहीम यार खान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस की जानिब से झूठी FIR दर्ज कर दी गई है। हमारा DPO रहीम यार खान से मुतालबा है कि अगर वो झूठी FIR है उसको फौरी खारिज किया जाए। अरसलान शौकत हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे भाई हैं। हम खानेवाल में भी जनरल सेक्रेटरी अदनान सईद की जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया और भरपूर मजम्मत की है। DPO रहीम यार खान से हमारा भी मुतालबा है कि झूठी FIR को फौरी खारिज किया जाए और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के जनरल सेक्रेटरी अदनान सईद साहब को यही कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से मनगढ़ंत FIR दर्ज की गई, उस FIR को फिर फरोज जो खारिज किया जाए। जी दुनियापुर थाना सदर पुलिस की कार्रवाई पुकार 15 पर डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की 2 मुख्तलिफ झूठी इत्तला देने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तफसीलात जानते हैं दुनियापुर से नुमाइंदा अली रजा की इस रिपोर्ट में। दुनियापुर थाना सदर पुलिस की कार्रवाई पुकार 15 पर डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की 2 मुख्तलिफ झूठी इत्तला देने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार। कॉलर शाहिद गोंदल ने इत्तला दी कि 3 मुल्ज़मान घर में दाखिल होकर डकैती कर गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात वाक़ियात बिल्कुल मुख्तलिफ पाए गए। कॉलर शाहिद गोंदल का सरफराज से लेन देन था, जो रकम लेने आया तो कॉलर ने रकम वापस न की। कॉलर ने सरफराज को मुकदमे में फंसाने की खातिर वाक़िए को डकैती कर देने की कोशिश की। दूसरा कॉलर मुस्तकीम राजपूत ने इतला दी कि किसी नामालूम शख्स ने असले के जोर पर इससे मोटरसाइकिल छीन लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात मुख्तलिफ पाए गए। मोटरसाइकिल छीनने की कोई वारदात पेश नहीं आई। कॉलर का अपने सके भाई से झगड़ा हुआ, वारदात की झूठी कॉल करके भाई को फंसाना चाहता था। पुलिस थाना सदर ने दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए।